ہم دین محمد کے وفادار سپاہی، اللہ کے انصار و مددگار سپاہی، اسلام کی عظمت کے نگہبان سپاہی، باطل کی خدائی کو گوارا نہ کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد. معزز ومكرم اساتذہ کرام، عزیز طلباء و طالبات اور معزز مہمانان گرامی، آج کا ہمارا یہ پروگرام یوم آزادی کی مناسبت سے انعقاد کیا گیا ہے۔ وقت کی تنگ دامنی کی وجہ سے میں اپنے بات کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے اس پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرنے کے لیے طالب یحییٰ فرقان بن محمد امتیاز حسین کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ یہ کھڑے ہو، یہ پکڑو، رکو ایک منٹ رکو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم۔ تلاوت کلام پاک کے بعد اردو زبان میں تقریر پیش کرنے کے لیے میں طالب تاج عبدالوہاب بن تاج قاسم کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور اردو زبان میں تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ محترم اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں،
आज 15 अगस्त है जो हमारे मुल्क का यौम आज़ादी है। इस दिन हमें अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को याद करना चाहिए। हमारा मुल्क मुख्तलिफ मज़ाहिब और ज़बानों का खूबसूरत गुलदस्ता है। हम सब हिंदुस्तानी हैं और यही हमारी सबसे बड़ी पहचान है। हमें नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत बांटनी चाहिए, तालीम हासिल करनी चाहिए, सच बोलना चाहिए और हमेशा अच्छे काम करना चाहिए। आइए हम सब मिलकर अहद करें कि अपने वतन को साफ, महफूज, तरक्की याफ्ता बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमारे वतन को सही सलामत रखे, आमीन। कुर्बान ओ दिल जान से इस खाके वतन पर, कुर्बान ओ दिल जान से इस खाके वतन पर, हम दौलत व शोहरत के तलबगार नहीं। तुम देख लो आज़ादी की तारीख उठाकर, तुम देख लो आज़ादी की तारीख उठाकर, हम लोग वफादार हैं, गद्दार नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ा। अब इनके बाद अंग्रेज़ी ज़बान में तकरीर पेश करने के लिए मैं 7वीं जमात के तालिब इल्म ताज सुफियान बिन ताज मुबारक को दावत देता हूँ कि आप आएँ और अंग्रेज़ी ज़बान में तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Good morning, respected President, Headmaster, all teachers and my dear friends. My name is Taj Sufyan. Today I am very proud to stand here and may speak our Independence Day. We celebrated Independence Day on 15 August every year because we got freedom from British rule in 1947. Today we celebrated that is Independence Day. Many freedom fighters fight to British rule to make our future big. The students of today are citizens of India. Citizens of India, standing in support with every student who believe in the power of peaceful dialogue. We should stand against corruption, crime, communal fight, violence to make our India strong and beautiful. No violence to be made. It need to be made perfect. It is love our country, every citizens. Jai Hind. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. अहसन अल्लाहु इलैकुम। अब इनके बाद कन्नड़ा ज़बान में तकरीर पेश करने के लिए मैं यासीन बिन असगर अली को दावत देता हूँ कि आप आएँ और कन्नड़ा ज़बान में तकरीर पेश करें। इसमें हाथ लगाना है, इसमें टेबल में हाथ लगाना है। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಶುಭೋದಯಗಳು. ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಇಮಾಮ್ ಅಲ್ಬಾನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದು ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ 80ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. 1947ರ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಭಾರತವು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಈ ದಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ಸುಲಭವಾಗಿ ದೊರೆತದಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಣಯಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲೇ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ, ಮೌಲಾನಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅನೇಕ ಮಹನೀಯರು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತ್ತು ಇತರ ಜನರು ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು. ಅವರ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಏಕತೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.
ನಮ್ಮ ದೇಶ ಭಾರತವು ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳು, ಧರ್ಮಗಳು, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಭಾರತೀಯರು, ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವದಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಂದರೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ದೇಶದ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ದೇಶದ ಭಾಗವನ್ನು ರಕ್ಷಿತ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಗುಣ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ದೇಶದ ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ದೇಶದ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜವು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಗೌರವದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದಲ್ಲೂ ನಾವು ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ದೇಶದ ಏಕತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ದೇಶದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ದೇಶವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಕೈಲಾಗದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ಗೌರವ ಕೊಡಲು ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿರುವ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಜೈ ಹಿಂದ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. जज़ाकुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह। अब इनके बाद बज़ुबान उर्दू तकरीर पेश करने के लिए मैं हुज़ैफा बिन नूरुल्लाह को दावत देता हूँ कि आप आएँ और उर्दू ज़बान में तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। चमन अपना, वतन अपना, ज़मीं व आसमां अपना, जहां में सबसे प्यारा है हिंदुस्तान अपना। मुअज़्ज़ज़ क़ाबिल क़दर सामिईन, हमारे मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम, मेहमानान ख़ुसूसी और पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, आज हम सब यहाँ यौम आज़ादी मनाने के लिए जमा हुए हैं। यौम आज़ादी से क़ब्ल हम अंग्रेज़ों की ग़ुलामी के ज़ंजीरों में जकड़े हुए थे। अंग्रेज़ हुक्मरान भारतीयों पर जुल्म सितम किया करते थे। मुसलसल जद्दोजहद और कुर्बानियों के बाद हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ और भारत से अंग्रेज़ों की हुकूमत का खात्मा हुआ। इसलिए हर साल हम 15 अगस्त को जश्न यौम आज़ादी बड़े जोश और खरोश से मनाते हैं। आज हम 80वां यौम आज़ादी मना रहे हैं। आज के खुशी के मौके पर हम खुलूस व मोहब्बत के साथ आज़ादी के लड़ाई में हिस्सा लेने वाले वतन के अजीम रहनुमाओं और शहीदों को याद करते हैं, जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी, डंडे लाठियां खाई, कई बार जेल गए और अपना सब कुछ इस मुल्क के आज़ादी के लिए कुर्बान कर दिया। आज़ादी की लड़ाई के शुरुआती दौर के मतवालों में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, शहीद शेर मैसूर टीपू सुल्तान, मौलाना अहमद शाह जैसे बेशुमार रहनुमा शामिल हैं। इनके बाद आज़ादी हिंद की तारीख का निहायत ही इनकलाब आमोज बाब है रेशमी रुमाल तहरीक। इस तहरीक का ही नतीजा था कि क्या मुसलमान क्या हिंदू, हर किसी के दिल में जालिम अंग्रेजों को भारत से बेदखल करने की उमंग पैदा हुई। इसी तरह आज़ादी की इस तहरीक को शहीद अशफाक़ुल्लाह खान, भगत सिंह, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू और बहुत सारे उलमा इकराम वगैरह ने आगे बढ़ाया। आज़ादी की खातिर अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज़ादी की लड़ाई भारत मुल्क की इज्तिमाई लड़ाई थी। अंग्रेज हमारे इस इत्तेहाद को देखकर भारत छोड़ने पर मजबूर हो गए। इस तरह तमाम भारतीयों को आज़ादी की इस तहरीक में कामयाबी मिली और हमारा मुल्क आज़ाद हो गया। लेकिन याद रखना मेरे कौम के लोगों, खास तौर पर मुसलमानों,
آزادی یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے. اس نعمت کا تقاضا صرف جھنڈا لہرانا، ترانے پڑھنا، تقریبات منعقد کرنا نہیں ہے، بلکہ ملک کی تعمیر، قانون کی پاسداری، انسانوں کی حقوق کی حفاظت اور اپنے فرائض کی ادائیگی بھی ہے. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ملک صرف سڑکوں، عمارتوں اور بازاروں سے نہیں بنتا، ملک انسانوں سے بنتا ہے. اگر شہری دیانتدار ہو تو ملک مضبوط ہوتا ہے، اگر نوجوان با کردار ہو تو ملک کا مستقبل روشن ہوتا ہے، اگر طالب علم محنتی ہو تو قوم ترقی کرتی ہے، اگر استاذ مخلص ہو تو نسلیں سنورتی ہے، اگر تاجر امانت دار ہو تو معیشت مضبوط ہوتی ہے، اور اگر حکمراں انصاف کرے تو معاشرے میں اعتماد پیدا ہوتا ہے. معزز سامعین، قرآن ہمیں عدل کا حکم دیتا ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. لہذا حقیقی حب الوطنی یہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں ہر شہری کے ساتھ انصاف کریں، خواہ اس کا مذہب، زبان، علاقہ یا طبقہ ہم سے مختلف ہی کیوں نہ ہو. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقی حب الوطنی کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم. اب ان کے بعد اردو ترانہ پیش کرنے کے لیے میں شعیب اور ان کے رفقا کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور اردو زبان میں ترانہ پیش کریں. میل فون پر میل نہیں تم بولا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پتا کیا پوچھتا ہے ملک میں کس کا گزارا ہے، پتا کیا پوچھتا ہے ملک میں کس کا گزارا ہے، میری نظروں میں دیکھو ملک کا دلکش نظارہ ہے، میری ہاتھوں کی ریکھاؤں میں نقش ہند سارا ہے، لہو کے آخری خطرے میں ہندوستان پکارا ہے، میرا دل ہے میری جان ہے میری آنکھوں کا تارا ہے، یہ ہندوستان 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 ہمارا ہے، یہ ہندوستان 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 ہمارا ہے. ترنگے کی بلندی کو جھکا سکتا نہیں کوئی، امان اللہ ہمیں دشمن مٹا سکتا نہیں کوئی، جہاں پہ پاؤں رکھتے ہم ہٹا سکتا نہیں کوئی، ہمارے آگے سر اپنا اٹھا سکتا نہیں کوئی، ہزاروں دشمنوں کا دشمنی نے سر جھکایا ہے، یہ ہندوستان 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 ہمارا ہے. میرا وعدہ ہے کہ اس ملک سے الفت رکھوں گا میں، خود ہی میں زندہ اپنے ویر کی عزت رکھوں گا میں، میرا وعدہ ہے کہ اس ملک سے الفت رکھوں گا میں، خود ہی میں زندہ اپنے ویر کی عزت رکھوں گا میں، مٹا دو ٹولیاں دشمن کی وہ طاقت رکھوں گا میں چھوٹا ہوں جوانوں سے بڑی ہمت رکھوں گا میں، اور اس جامعہ کے پیارے بچوں کا یہ نعرہ ہے، یہ ہندوستان 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 ہمارا ہے، یہ ہندوستان 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 ہمارا ہے. السلام علیکم. ماشاء اللہ، زادکم اللہ علما وعملا. اب ان کے بعد انگریزی زبان میں تقریر پیش کرنے کے لیے میں 7ویں جماعت کے طالب علم رضوان بن حسین کو آواز دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning, everyone, respected President, Headmaster, all teachers, and my dear friends. It is my pleasure to stand before you to speak on 15 August. As the Indian citizen, we should not consider this day for only hoisting the national flag and distributing sweet. We have respect for our flag and our nation. Our great freedom fighters like Hazrat Tipu Sultan, Maulana Abul Kalam Azad, Ashfaqullah Khan, Mahatma Gandhi ji, Bhagat Singh, etc. sacrificed their entire life for independence of our country. We the students of future of India, we have take responsibility as a citizen. We should set our citizen goal to become IS officers, soldiers, good politicians, scientists, religious, school to develop our country in good way. Freedom is never dear at any price. It is breath of life. What would a man not pay for living? No amount of money can give happiness that freedom does. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. माशाअल्लाह बारकल्लाहु फीकुम। अब इनके बाद मदीहा बिनत मोहम्मद रफ़ीक को दावत देता हूँ कि आप आएँ और कन्नड़ा ज़बान में तकरीर पेश करें। मदीहा बिनत रफ़ीक डाइस पर। Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳಗಿನ ಶುಭೋದಯ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮದಿಹಾ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಬಲಿದಾನ ಮಾಡಿದ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ದಿನವಾಗಿದೆ ಅಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಭಾಷಣ ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. माशाअल्लाह। अब इनके बाद कन्नड़ा ज़बान में तराना पेश करने के लिए मैं उम्मे नशरह और उनके रुफ़क़ा को दावत देता हूँ कि आप तमाम आएँ और कन्नड़ा ज़बान में तराना पेश करें। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ಹಿಂದುಸ್ತಾನವು ಎಂದು ಮರೆಯದ ಭಾರತ ರತ್ನವು ನೀನಾಗು. ಹಿಂದುಸ್ತಾನವು ಎಂದು ಮರೆಯದ ಭಾರತ ರತ್ನವು ನೀನಾಗು. ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಮೆಯ ಮಗನಾಗು, ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯ ಸಿರಿಯಾಗು. ಹಿಂದುಸ್ತಾನವು ಎಂದು ಮರೆಯದ ಭಾರತ ರತ್ನವು ನೀನಾಗು. ಭಾರತ ದೇಶದ ಒಡವರ ಕಂಬನಿ ಒರೆಸುವ ನಾಯಕ ನೀನಾಗು, ಒರೆಸುವ ನಾಯಕ ನೀನಾಗು. ಭಾರತೀಯರ ವಿಶ್ವ ಪ್ರೇಮವ ಮೆರೆಸುವ ಜ್ಞಾನಿ ನೀನಾಗು, ಮೆರೆಸುವ ಜ್ಞಾನಿ ನೀನಾಗು. ಭಾರತೀಯರ ವ್ಯವ್ವ ಭವಿಷ್ಯವ ಬೆಳಗುವ ವಿಜ್ಞಾನಿ ನೀನಾಗು, ಬೆಳಗುವ ವಿಜ್ಞಾನಿ ನೀನಾಗು. ಹಿಂದುಸ್ತಾನವು ಎಂದು ಮರೆಯದ ಭಾರತ ರತ್ನವು ನೀನಾಗು. ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಮೆಯ ಮಗನಾಗು,
ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯ ಸಿರಿಯಾಗು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನವು ಎಂದು ಮರೆಯದ ಭಾರತ ರತ್ನವು ನೀನಾಗು ಭೂಮಂಡಲದ ಹಾಹಾಕಾರವ ನೀಗುವ ಶಕ್ತಿಯು ನೀನಾಗು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನವು ಎಂದು ಮರೆಯದ ಭಾರತ ರತ್ನವು ನೀನಾಗು ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಮೆಯ ಮಗನಾಗು ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯ ಸಿರಿಯಾಗು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನವು ಎಂದು ಮರೆಯದ ಭಾರತ ರತ್ನವು ನೀನಾಗು ಭಾರತ ರತ್ನವು ನೀನಾಗು ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. माशाअल्लाह। अब इनके बाद उर्दू ज़बान में तराना पेश करने के लिए मैं सकीन और उनके रफ़क़ा से गुजारिश करता हूँ कि आप तमाम आएँ और उर्दू ज़बान में तराना पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे, बाग़बाने चमन तू सलामत रहे। मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे, बाग़बाने चमन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। मेरे अजदाद की मेहनतों का निशा, मेरे असलाफ की अजमतों का बयां, मेरे अजदाद की मेहनतों का निशा, मेरे असलाफ की अजमतों का बयां, यादगारे चमन तू सलामत रहे, बाग़बाने चमन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। रब के प्यारों का ही एक हंसी साहिबा, बच्चे बूढ़े जवा हर घड़ी शादमां, रब के प्यारों का ही एक हंसी साहिबा, बच्चे बूढ़े जवा हर घड़ी शादमां, ऐ बहारे चमन तू सलामत रहे, बाग़बाने चमन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। ए तिरंगा सदा तुम उठाए रहो, गिर न पाए कभी इसको थामे रहो। ए तिरंगा सदा तुम उठाए रहो, गिर न पाए कभी इसको थामे रहो। ज़ुल्फ़िक़ारे वतन तो सलामत रहे, बाग़बाने चमन तो सलामत रहे, तो सलामत रहे। इल्म की रोशनी हर जगह हम करे, इसकी तामीर का यूं सदा दम भरे। इल्म की रोशनी हर जगह हम करे, इसकी तामीर का यूं सदा दम भरे। रौनक़ इल्म फन तो सलामत रहे, बाग़बाने चमन तो सलामत रहे, तो सलामत रहे। ऐ वतन तेरे क़ातिर है इज्जत मिली, राहते जा मिली और मोहब्बत मिली। ऐ वतन तेरे क़ातिर है इज्जत मिली,
راحت جا ملی اور محبت ملی صاحب جان من تو سلامت رہے باغبان چمن تو سلامت رہے تو سلامت رہے تو سلامت رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ الحمدللہ. یہاں پر ہمارے سامنے طلباء و طالبات کا جو علمی مظاہرہ ہونا تھا وہ اختتام کو پہنچتا ہے. لہذا اب اس کے بعد میں فضیلت الشیخ صالح العماد سنابلی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں اور ہم سامعین کو چند کلمات سے مستفید فرمائیں. فضیلت الشیخ صالح العماد اسٹیج پر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد. محترم اساتذہ کرام، مہمانان خصوصی، عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم جس مقصد کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، جس کام کے لیے ہم اکٹھا ہوئے ہیں، اس کام کو یوم آزادی کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کو ہم 15 اگست کہتے ہیں. یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں مؤرخین بہت لمبی چوڑی گفتگو کرتے ہیں، اوراق میں درج ہیں. اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ وہ 15 اگست ہے یا وہ آزادی کا دن ہے جسے آج ہم خوشی سے منا رہے ہیں، جسے ہم آج دیکھ رہے ہیں، جھنڈا پھہرا رہے ہیں. اس کے پیچھے کتنی قربانیاں رہی ہوگی. اگر ہم اس کی طرف توجہ دیں تو ہمیں ایک نتیجہ سامنے دیکھنے کو ملے گا. محترم حضرات، یہ وہ دن ہے جس کی خوشی کے لیے ہمارے آبا و اجداد نے کتنی کوشش کی ہوگی. اس کوشش سے پہلے ہمارے مسلمانان ہند نے اس ہندوستان کو تقریباً 850 سال تک حکومت کی. اس ہندوستان کی حکومت کتنا رہی؟ 850 سال تک. اس کے بعد انگریزوں نے اس پر کس قدر قبضہ کیا، کس طریقے سے، کس حربے سے قبضہ کیا، اس کے بعد وہ 200 سال تک چلاتا رہا. 200 سال چلانے کے بعد اس ہندوستانی مسلمانوں کو، اس ہندوستانی کے ناگرکوں کو اپنے قبضے میں لے کر، اپنی غلامیت کی زنجیر میں جکڑ کر وہ اپنا کام اور اپنا فائدہ اٹھانا چاہ رہے تھے. اس غلامی کی زنجیر کو توڑنے کے لیے اس ہندوستان کی سرزمین میں ہندوستان کے فردوں نے کتنے خون بہائے ہوں گے، ان کی لاتعداد رپورٹ موجود ہے. لیکن اس ہندوستان کو آزاد کرنے میں تقریباً 90 سال لگ گئے. کتنے سال لگ گئے؟ 90 سال لگ گئے. مؤرخین بتلاتے ہیں کہ 90 سال لگنے کا مطلب کیا ہے؟ منصوبہ بندی نہ ہونے کی وجہ سے. آپ تاریخ دیکھ لیجئے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد سے لے کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی،
नबूवत मिलने के बाद पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का डंका सिर्फ 23 साल में तकरीबन मुकम्मल हो रहा है, लेकिन इस हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए 90 साल लगने का मतलब मंसूबा बंदी में हमारी कमजोरी थी। अगर हम तरबियत, जहनी तरबियत में कमी करेंगे, अगर हम फर्द को तैयार नहीं करेंगे, नौजवाना ने इस्लाम को तैयार नहीं करेंगे, नौजवाने ने हिंद को तैयार नहीं करेंगे, हमारी नस्लों के जहनों की तरबियत नहीं करेंगे, तो फिर इससे कहीं ज्यादा हम गुलामियत की जंजीरों में जकड़ने वाले होंगे। मोहतरम हज़रात, आज हम जो कमियां पा रहे हैं, इसकी वाज़ेह दलील यह है कि हमारे अंदर तरबियत की कमी हो रही है, क्योंकि हमारा मंसूबा बंदी साल, 10 साल, 50 साल की होनी चाहिए थी, लेकिन आज हम अपनी मंसूबा बंदी 10 दिन के बराबर भी नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम पीछे चले जा रहे हैं। आज इस हिंदुस्तान को आजाद करने के पीछे अगर हम देखेंगे, तो इस हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए सिर्फ एक की कुर्बानी नहीं, सिर्फ मुसलमानों की कुर्बानी नहीं, सिर्फ यहूदियों की कुर्बानी नहीं, सिर्फ ईसाइयों की कुर्बानी नहीं, सिर्फ हिंदुओं की कुर्बानी नहीं, बल्कि हर एक फिरके की कुर्बानी है, हर एक मजहब की कुर्बानी है। जब इस हिंदुस्तान को आजाद करते वक्त ये जात पात पूछी नहीं गई थी। जब हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए जो खून बहाए गए थे, उन खून से वो आवाज नहीं आ रही थी कि तू फला जात का है, तू फला कबीले का है, तू फला कौम का है। तो आज हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमानों से ये क्यों पूछा जा रहा है, दलितों से ये क्यों सवाल किया जा रहा है कि तू हिंदुस्तानी नहीं हो? आखिर क्या वजह है? मुर्दों से जब पूछा नहीं गया था, तो जिंदों से क्यों पूछा जा रहा है? इसका मतलब यह है कि हम सिर्फ नारा लगाने से, यौम आजादी मनाने से हमारा मकसद पूरा नहीं हो सकता। अगर हमें यौम आजादी मनाना हो, झंडा लहराना हो, अगर हकीकी खुशी हासिल करनी हो, तो अपनी नस्लों को तरबियत देनी होगी, अपने नौजवानों को सही तरबियत, सही डगर पर और सही तवाजुन से, सही मुतवाजिन तालीम देनी होगी। सिर्फ एक मैदान में काम करने से नहीं होगा, सिर्फ एक फील्ड में काम करने से नहीं होगा, बल्कि तमाम फील्डों में, चाहे वो तालीमी मैदान हो, चाहे वो सियासी मैदान हो, चाहे वो तरबियती मैदान हो, चाहे वो माइशती मैदान हो, किसी भी मैदान में आपको तवाजुन के साथ मेहनत करनी होगी। तब हम अपने असासा को बचा सकते हैं, तब हम अपने असासा को चाहे उनकी हिफाजत कर सकते हैं। वरना ये असासे, ये हमारी कुर्बानियां जो हम याद कर रहे हैं, क्या मुसलमाना ने हिंद में, क्या हिंदुस्तान को आजाद करने में मुसलमानों की कितनी कुर्बानियां थी, हमारे आबा अजदाद की कितनी कुर्बानियां थी। सिर्फ ये कह करके नहीं होगा। अगर हम मंसूबा बंदी नहीं करेंगे, मुस्तकबिल की तरबियत नहीं करेंगे, आने वाली नस्लों की हिफाजत के खातिर कुछ खड़े नहीं होंगे, तो ये असासे हम जल्द भुला डालेंगे। क्योंकि इसको भुलाने के लिए एक ही वजह है कि हम अगर मेहनत ना करें, अपनी जिम्मेदारी को ना समझें, अपने एहसासात को ना जगाएं, तो ये चीजें हमसे निकलती जाएगी। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें मंसूबा बंदी और जो हमारे अंदर कमियां, कोताहियां हैं, उस चीज को निकाल फेंकने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। ये थे फज़ीलत शेख सालेह अल-अल्लाह सनाविली हफ़िज़हुल्लाह, जो हमें आज़ादी के ताल्लुक से बात बता रहे थे। इंसान के आज़ाद रहने के लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी है। हम आपको अपनी तरफ से इस बात का यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह आपकी कही भी बातों पर अमल करने की कोशिश करेंगे। अब इनके बाद मैं मुदीर मदरसा फज़ीलत शेख फैज़ुल्लाह अल-मदनी हफ़िज़हुल्लाह को दावत देता हूँ कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं और हम तमाम सामिईन को चंद बातों से नवाजें।
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد. معزز اساتذہ کرام، معلمات، دور دراز سے آئے ہوئے طلباء و طالبات کے سرپرست حضرات، عزیز طلباء و طالبات، آج کے اس پروگرام کے دو بڑے حصے ہیں. آج کا دن یوم آزادی ہے، آزادی کا دن ہے. آزادی کیا ہے؟ کتنا آزاد انسان کو ہونا چاہیے؟ آزادی کیوں ضروری ہے؟ اس کے بارے میں کچھ باتیں صبح کے پروگرام میں آپ لوگوں کو بتلائی گئی. اس پروگرام کا دوسرا اہم حصہ آج کے طلباء و طالبات کی تعلیمی رپورٹ کا ہے. سارے سرپرست جو یہاں پر آئے ہوئے ہیں، بے شک وہ اپنے بچوں کے مستقبل کو لے کر فکر مند ہیں، اور سرپرست ہونے کی حیثیت سے ایک سرپرست کو اپنے ماتحت جو بھی ہیں ان کو لے کر فکر مند ہونا بھی چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام بچوں اور بچیوں کا مستقبل روشن کرے. جو بھی سیکھ رہے ہیں اللہ دنیا میں بھی انہیں اس سے فائدہ پہنچائے، اور ان کی یہ تعلیم آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنے. تعلیم اس کے مقام کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر کوئی اپنے آپ کو علم والا بتانے کی کوشش کرتا ہے. چاہے اس کے پاس علم رہے یا نہ رہے، ہر کسی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ خود کو علم والا لوگوں کے سامنے بن کر دکھائے. یہ چیز اچھی ہے، اسی لیے ہر آدمی اپنے آپ کو علم والا ظاہر کرنا چاہتا ہے. لیکن علم، چاہے دنیا کا علم ہو چاہے دین کا علم ہو، آسانی سے حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے. ہمارے بڑوں نے، ہمارے علماء نے ایک چھوٹا سا جملہ کہا جس میں بہت کچھ بیان کیا گیا: لا ينال العلم براحة الجسد. علم حاصل کرنے کے لیے خود کو پریشانیوں میں ڈالنا پڑے گا. علم حاصل کرنے کے لیے خود کو پریشانیوں میں ڈالنا پڑے گا. راحت بھی ملے، سکون بھی ملے، نرم گرم بستر بھی ملے، مرضی کے کھانے اور پکوان بھی ملے. جن لوگوں کے ساتھ ہم رہنے کی خواہش رکھتے ہیں ان لوگوں کی ہم کو صحبت اور ساتھ بھی ملے، اور ساتھ میں علم بھی ملے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. علم حاصل کرنے کے لیے قربانیاں چاہیے. نیند آ رہی ہے، بستر جھٹک کر اٹھنا پڑتا ہے. علم حاصل کرنے کے لیے دل نہیں کر رہا ہے تب بھی گھنٹوں بیٹھنا پڑتا ہے. علم حاصل کرنے کے لیے استاد کی سختی کو سہنا پڑتا ہے. علم حاصل کرنے کے لیے گھر بار چھوڑنا پڑتا ہے، مال کی قربانی دینی پڑتی ہے، اچھے کھانے چھوڑنے پڑتے ہیں. مختصر الفاظ میں کہا گیا لا ينال العلم براحة الجسد
जिस्म को सुकून देते हुए इल्म हासिल नहीं किया जा सकता, जिस्म को थकाना पड़ेगा। और हकीकत में इस फितने के दौर में आप तलबा व तालिबात काबिले मुबारकबाद है। मुबारक हो आप लोगों को, आप लोगों ने बहुत अच्छा कदम उठाया कि घर को छोड़कर, माँ बाप को छोड़कर, ऐश व आराम को छोड़कर एक ऐसी जगह पे आ गए जहां आप इल्म सीखना चाहते हैं। आप लोगों का आना ये बजाते खुद इस बात की दलील है कि आप लोगों के अंदर इल्म की मोहब्बत है। और अल्लाह से हमारी दुआ है कि जो मकसद लेकर आप आए हैं, अल्लाह आप तमाम को उस मकसद में कामयाब फरमाए। आप लोगों को इत्मीनान होना चाहिए कि अल्लाह की मेहरबानी से आप जहां पर आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपके असातिज़ा दिन रात आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, वक्त नहीं देखते, अपने घर के काम काज नहीं देखते। तड़प है उनमें, जज्बा है उनमें, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। घरों के अंदर उतनी निगरानी नहीं होती, उतनी ज्यादा तवज्जो नहीं होती जितनी तवज्जो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर दी जा रही है। हर बच्चे को फजर की नमाज के लिए जगाया जाता है। शायद ही घरों में ये चीज होती होगी, कुछ घरों में होती होगी। आप लोग फजर के बाद उठते हो, फजर के बाद एक उस्ताद बैठकर आप लोगों को सबक याद कराते हैं। मेहरबानी है अल्लाह ताला की तरफ से। अल्लाह की मेहरबानी से क्लासों में उस्ताद आप लोगों के वक्त से पहले पहुंचते हैं। अपने बच्चों की तरह आप लोगों की तालीम की फिक्र करते हैं। आप लोगों को भी चाहिए कि आप लोग इस पर तवज्जो दें, तालीम में आगे बढ़ें। जो मेहमान आए हुए हैं माँ बाप, उन्हें ये समझना चाहिए कि घर के अंदर हमारे एक दो बच्चे होते हैं, उन एक दो बच्चों की निगरानी करते करते माँ बाप थक जाते हैं। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह इतनी कसीर तादाद में तलबा है, इतनी कसीर तादाद में तालिबात हैं। इन तमाम तलबा व तालिबात के अच्छे बुरे तमाम मसाइल को समझते हुए इदारे के असातिज़ा, इदारे के निगरान, इदारे के मुअल्लिमीन, इदारे के मुदर्रिसीन, सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। क्यों? इसलिए मेहनत कर रहे हैं, इसलिए कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोगों के बच्चों का मुस्तकबिल रोशन हो जाए। जरा आप सोच कर देखें, गांव में, आपके बस्ती में, आपके रिश्तेदारों में बच्चे स्कूल जा रहे होंगे, सिर्फ स्कूल की तालीम पढ़ते हैं, लेकिन टेंशन में रहते हैं बच्चा एसएलसी पास करेगा कि नहीं पास करेगा, कितने नंबर लाएगा, बच्ची कितने नंबर लाएगी। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह के फजल व करम से, असातिज़ा की कड़ी मेहनतों से अल्लाह तबारक व तआला ने इस साल इदारे के जो बच्चे 10वीं का एग्जाम दिए 100% रिजल्ट अल्लाह ने अता किया। ये मेहरबानी है अल्लाह ताला की, ये मेहनत है असातिज़ा की। कितने ऐसे बच्चे हैं जो आए, किसी मदरसे से आए, उनको पढ़ना नहीं आता था, अंग्रेजी नहीं आती थी, कन्नड़ा नहीं आता था, असातिज़ा ने मेहनतें की। कितने ऐसे बच्चे थे जो बहुत कमजोर थे,
अल्लाह ताला ने उनके दिलों को खोल दिया, असातिज़ा ने उन पर मेहनतें की, अल्लाह की मेहरबानी से सारे बच्चे कामयाब हो गए। और मदरसे की पूरी तालीम पढ़ते हुए, आपको मालूम होना चाहिए स्कूल की तालीम जितनी है मदरसे की तालीम उससे कुछ ज्यादा ही है, कम नहीं है। स्कूल के 6 सब्जेक्ट जैसे पढ़ते हैं बच्चे, मदरसे के भी 6, 7, किसी के 8 सब्जेक्ट तक है। जरा सोचो, गांव में रहते हुए एक बच्चा सिर्फ 6 सब्जेक्ट पढ़कर 60, 70, 80 नंबर लाता है तो माँ बाप खुश हो जाते हैं। यहाँ पर कितने बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह 85 से ज्यादा लेके आए, 90 तक लेके आए एसएलसी में, और अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे का रिजल्ट भी वैसा ही रहा। ये अल्लाह की मेहरबानी है, ये अल्लाह की नेमत है जो आप लोगों के सामने बयान कर रहे हैं। और एक बात मैं आपको बताऊं, अल्लाह की मेहरबानी से इस मदरसे में तालीम को लेकर बड़ी संजीदगी है। असातिज़ा पर हम कभी कभी लगता है कि जरूरत से ज्यादा सख्ती कर रहे हैं और करते हैं, और हमको ये भी यकीन है कि बच्चों की भलाई के लिए हमारे असातिज़ा इन सारी चीजों को सह रहे हैं, और अल्लाह से दुआ है अल्लाह उनको इसका बेहतर बदला अता करे। लेकिन आप लोग देख रहे हैं उसके नताइज क्या है, आप लोगों के सामने हैं। तो मेरे मुहतरम भाइयों, हम बड़े यकीन के साथ, दावे के साथ ये बात कह सकते हैं कि पूरी रियासत कर्नाटका में, पूरे कर्नाटक लेवल पर मदरसे की पूरी तालीम देते हुए इंग्लिश मीडियम में स्कूल की पूरी तालीम देने वाले इदारे 2 या 3 हैं। एक जामिया मुहम्मदिया मंसूरा बेंगलुरु है, एक ये इदारा है, और अल्लाह के फजल व करम से बच्चे दोनों तालीम अच्छे अंदाज में अपना रहे हैं, हासिल कर रहे हैं। ये बात और है कि हम लोगों ने तशहीर के लिए, लोगों के सामने इन चीजों को लाने के लिए वो जोर नहीं लगाया, हम लोगों ने वो एडवर्टाइजमेंट हम लोगों ने नहीं किया जो तालीम की तशहीर को लेकर करना चाहिए। लेकिन आप टटोल कर देख सकते हैं, अल्लाह का शुक्र है, जिन बच्चों को, जिन बच्चियों को हम कुरान पढ़ाते हैं, हम मुतमईन हैं कि वो बच्चे बहुत प्यारे अंदाज में कुरान पढ़ रहे हैं। अरबी का तलफ्फुज बहुत अच्छा है, उर्दू अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उर्दू पढ़ाई जाती है, कन्नड़ा पढ़ते हैं बच्चे हमारे, अंग्रेजी पढ़ते हैं, अरबी जबान पढ़ते हैं, इंग्लिश का ग्रामर पढ़ते हैं, अरबी का ग्रामर पढ़ते हैं, उसके अलावा और बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। आज आप लोगों के सामने जिन बच्चों को खड़ा करके कुछ कहने के लिए कहा गया, आपको यकीन मानना चाहिए कि ये मेहनत सिर्फ 7-8 दिन की है। बहुत पहले से प्लान करके बच्चों को स्टेज पे लाकर शो करने की कोशिश नहीं की गई। इस मदरसे की एक अच्छाई कहो या खराबी कहो, आप बच्चों को स्टेज के ऊपर ला करके वाहवाही बटोरने की हम कभी कोशिश नहीं करते, और वो जरूरत भी नहीं है, क्योंकि एक बच्चे को एक तकरीर दिलाकर अच्छी तरीके से जोश से तकरीर कराने के वास्ते ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। 6-7 दिन अगर मेहनत करेंगे एकदम धमाकेदार तकरीर कर सकता है बच्चा, एकदम बहुत अच्छा जो है मुजाहरा कर सकता है बच्चा। लेकिन वो इल्म नहीं है, वो नजर आने वाली चीज है। मिसाल देकर समझाता हूं मैं आपको। एक बर्तन में अगर हम दूध रखते हैं, आग तेज करने से उबाल आता है। उबाल आने का मतलब ये नहीं कि बर्तन भरा हुआ है, उबाल आग की गर्मी से थोड़ी देर के लिए आता है, बुलबुले हैं वो। जैसे ही आग कम करेंगे असल दूध कितना है वो समझ में आएगा। क्लासों में जो मेहनत होती है वो असल मेहनत है।
क्लासों में बच्चों को लेकर जो तालीम के बारे में तवज्जो दी जाती है वो असल तवज्जो है, उससे बच्चों के अंदर पुख्तगी आती है। तकरीर कराना, बच्चों को ला करके खड़ा कर देना, मुजाहरे करना, जलसे करना, पेरेंट्स को खुश करना, ये हमारा मकसद कभी ना रहा है, कभी ना रहेगा। हम ये चाहते हैं कि जो बच्चे इदारे में कदम रखें कुछ बन करके यहाँ से जाएं, उनको इल्म क्या है इसकी उन्हें समझ में आ जाए। और अल्लाह की मेहरबानी से फजर की नमाज से लेकर बच्चों के सोने तक 9:30 बजे 10 बजे तक कभी भी बच्चों को खाली नहीं छोड़ा जाता है, उनके पीछे असातिज़ा लगे ही रहते हैं। बच्चों के उठने से पहले हॉस्टल के निगरान बच्चों को उठाते हैं, वजू करा के उनको मस्जिद में लाते हैं, नमाज पढ़ाने के बाद यहाँ बिठाकर उनको एक 40-45 मिनट पढ़ाया जाता है, 20-25 मिनट उनको वजू करने के लिए छोड़ा जाता है, फिर उसके बाद क्लास शुरू हो जाती है। जब नाश्ता होता है वहां पर असातिज़ा नहीं तो मुअल्लिमात होते हैं, फिर उसके बाद नमाज को आते हैं, वहां पर भी निगरानी रहती है। नमाज के बाद फिर क्लासें हैं, क्लासों के बाद जब सोने जाते हैं बच्चे, घरों में वो नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह असातिज़ा निगरानी करके बच्चों को दोपहर में सुलाते हैं, खेल के वक्त में निगरानी होती है, फिर मगरिब के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हाल में बैठाकर उनको पढ़ाया जाता है, इशा के बाद उनकी तालीम होती है। बच्चों के वक्त को, उनके एक एक मिनट को आपको यकीन होना चाहिए कि हम पैसे से ज्यादा कीमती समझते हैं, क्योंकि पैसा जाए होने पर उसे दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन बच्चों का वक्त एक मर्तबा चला जाए तो उसे दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता। इसीलिए बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे माँ बाप बच्चों की छुट्टियों की दरखास्त लेकर आते हैं, हम मुस्तरद कर देते हैं, रद्द कर देते हैं। कितने मर्तबा ऐसा हुआ, उस्ताद ने कहा कि मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, मुझे इजाजत दीजिए। हमने कहा कि आप क्लास के बाद भी जा सकते हैं, मेहरबानी करके आप क्लास मुकम्मल कीजिए, अपने बच्चे को बाद में ले जाकर आप हॉस्पिटल में दिखाइए। तो आप इससे ये समझ सकते हैं कि इदारा आपके बच्चों की तालीम को लेकर, आपके बच्चों के वक्त को लेकर कितना सीरियस है। इसीलिए आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं, आपके बच्चों की तालीम को लेकर आपकी जिम्मेदारियां क्या है, माँ बाप होने की हैसियत से, सरपरस्त होने की हैसियत से इसे आपको समझना होगा। क्योंकि अगर हम इसे नहीं समझेंगे, हर कोई अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करेगा, तो बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन नहीं बनाया जा सकता। एक मिसाल से मैं आपको समझाता हूँ। एक किसान है, उसका खेत अच्छा है, उसकी बीज अच्छी है, खाद अच्छा है, पानी अच्छा है, लेकिन मौसम अच्छा नहीं है, फसल नहीं आएगी। सब कुछ अच्छा है, बीज अच्छी नहीं है, फसल नहीं आएगी। बीज भी अच्छी है, जमीन भी अच्छी है, किसान की मेहनत नहीं है तो फसल नहीं आएगी। फसल आने के लिए जमीन भी अच्छी होनी चाहिए, बीज भी अच्छा होना चाहिए, किसान की मेहनत भी होनी चाहिए, देखभाल भी होनी चाहिए। उसी तरीके से आपके बच्चे, अगर हकीकत में आप उन्हें कामयाब देखना चाहते हैं, सिर्फ असातिज़ा की मेहनत काफी नहीं है, सिर्फ असातिज़ा के साथ साथ बच्चों की मेहनत काफी नहीं है, माँ बाप की जिम्मेदारियां भी हैं। क्या है माँ बाप की जिम्मेदारियां? सबसे पहली चीज, बच्चों के हक में दिल की गहराई से दुआ करना कभी ना भूलें और इसे मामूली चीज ना समझें। बच्चों के हक में दुआएं अल्लाह तबारक व तआला रद्द नहीं करता है। और दुआ कब से करना है मालूम है आपको? बच्चा पैदा होने से लेकर जब तक आप जिंदा हैं, आपको अपने औलाद के हक में दुआ करते रहना होगा। ये नबियों की सुन्नत है, ये इस्लाम की तालीम है।
आप क्या बनाना चाहते हैं अपने बच्चे को, क्यों बनाना चाहते हैं, आपका मकसद क्या है। सबसे पहले आपका मकसद सही होना चाहिए। आप अपने बच्चे को अगर डॉक्टर बनाना चाहते हैं, क्यों बनाना चाहते हैं, पैसा कमाने के लिए बनाना चाहते हैं। अल्लाह आपके बच्चे से आपको पैसा जरूर देगा लेकिन सुकून नहीं देगा। अगर आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाकर शोहरत चाहते हैं, शोहरत देगा, सुकून नहीं देगा। सबसे पहले अपने बच्चे को आप क्या बनाना चाहते हैं उसके साथ नीयत सही कीजिए। बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं इसलिए ताकि वो मरीजों का इलाज करे, दुख दर्द में उनका साथ दे, उनकी तकलीफ को कम करे और साथ ही साथ हलाल रोजी हासिल करे। अगर ये आपका मकसद है, अल्लाह आपके मकसद में भी आपको कामयाबी देगा, दिल का सुकून भी अता करेगा, बच्चे की जिंदगी भी अच्छी करेगा, आखिरत भी अच्छी करेगा। ऐसे ही अगर आप अपने बच्चे को एक लॉयर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, बहुत बड़ा आलिम बनाना चाहते हैं, जो भी बनाना चाहते हैं, सबसे पहले हमारी नीयतें सही होना है। साथ ही साथ कसरत से दुआ होनी है। दुआ और नीयत के साथ साथ आपके बच्चे को लेकर आपको सीरियस रहना होगा। बड़ी खुशी की बात है, कुछ माँ बाप इदारे के बुलाने पर बच्चों की तालीम के मसले को समझकर आए। खुशकिस्मत हैं वो बच्चे जिनके माँ बाप आए हैं, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिनके माँ बाप नहीं आए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या बच्चे की तालीम की जिम्मेदारी में सबसे बड़ा रोल माँ बाप का नहीं है क्या? अगर नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, कितने सीरियस हैं वो अपने बच्चे की तालीम को लेकर। अगर कोई किसी मजबूरी से नहीं आया है तो वो बात अलग है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो ये समझ कर नहीं आते कि क्या करना है जाके। बहुत बड़ी बात है, बहुत बुरी बात है। और हमारी कौम का, खासकर हमारी मुस्लिम कौम का ये बहुत बड़ा दुखड़ा है कि हमारे बच्चों के बाप के पास शराब पीने के लिए पैसा है लेकिन बच्चों को तालीम देने के लिए नहीं है। हमारे बच्चों के माँ बाप के पास बैठकर फजूल की बातें करने के लिए वक्त है लेकिन आकर उनकी तालीम की रिपोर्ट देखने के लिए नहीं है। कितनी बुरी बात है। हमने जन्म दिया अपने बच्चों को, उनकी तालीम की हमको फिक्र नहीं है, वो क्या पढ़ रहे हैं ये देखना भी हम नहीं चाहते, सुनना भी नहीं चाहते। तो ऐसी सूरत में जो है आपने बाप होने का, माँ होने का, सरपरस्त होने का क्या हक अदा किया आपने? मालूम होना चाहिए रिपोर्ट, क्योंकि मालूम नहीं है तालीमी रिपोर्ट सुनने के बाद आपके दिल से आपके बच्चे के लिए कौन सी ऐसी बात निकल जाए जो बात उस बच्चे के दिल को लग जाए और उसकी जिंदगी बदल जाए। कितने बच्चे ऐसे होते हैं, पढ़ते नहीं, शरारती होते हैं, उनको उनके फ्यूचर को लेकर किसी भी तरीके की कोई संजीदगी नहीं होती, लेकिन देखते हैं अचानक बाप की आंखों में उन्होंने आंसू देखे, माँ की आंखों में आंसू देखे, माँ को तड़पते हुए देखा, अल्लाह ने फौरन बच्चे का दिल बदल दिया। दूसरे दिन से उसने दिल में इरादा कर लिया कि मुझे कुछ बनना है, तो अल्लाह के फजल और करम से वो बच्चा बनकर निकल जाता है। कौन कर सकता है ये काम? पेरेंट्स कर सकते हैं। दिल से अगर बात निकलती है बच्चे को लेकर, सही तौर पर समझाता है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कामयाबी जरूर अता करता है। जाकर पढ़ो हमारे बड़ों के किस्से, बड़े बड़े अइम्मा, बड़े बड़े उलमा। जब हम उलमा कहते हैं तो सिर्फ दीन के आलिम नहीं है, क्योंकि हमारे जो उलमा थे पहले, जो हमारे बड़े थे, वो दीन के आलिम होने के साथ साथ बड़े साइंसदान थे, बड़े डॉक्टर थे, बड़े जो है फलसफा वाले थे, सब कुछ थे। जितने भी उलमा हैं हमारे, हम जिनकी किताबें पढ़ते हैं अरबी में, उनकी किताबें भरी पड़ी हैं। कितने उलमा की जिंदगियों को माँ के एक जुमले ने एक आवारा बच्चे से एक बहुत बड़ा आलिम बना दिया। बन सकते हैं, जिम्मेदारी है, समझना पड़ेगा माँ बाप को। तड़प के साथ बच्चे को नसीहत करना होगा,
یہ احساس دلانا ہوگا کہ بچے تیری خوشی سے، تیری کامیابی سے مجھے خوشی حاصل ہوتی ہے، تجھے کامیاب دیکھ کر میں بہت خوش ہوتا ہوں۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کی زبان سے نکلے ہوئے یہ کلمات بچے کو بدل دیں۔ تو سب سے پہلی چیز احساس ہو ہم سب کو، اخلاص ہو ہم سب کے اندر، دعائیں کریں ہم سب اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کی تعلیم کو لے کر ہم سیریس بنیں، ان کے دل کو کھولنے والے بنیں، ان کو نصیحت کریں۔ جب ادارے سے کوئی شکایت آتی ہے سنجیدگی سے سنیں، صرف بچے کے فیور میں نہ جائیں۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بچے کو آپ پورے طور پر نیگلیکٹ کریں، سنیں بچے کی بات کو، لیکن ہمارا تجربہ کہتا ہے بہت سارے وقت میں غلط فہمیاں ہوتی ہیں۔ ادارے سے سنجیدگی سے بات کریں، ادارے سے محبت کریں، یہاں پر آپ کے بچوں کا فیوچر بنایا جا رہا ہے، جڑنا چاہیے آپ کو۔ آپ اس ادارے کے خاندان کے ایک فرد ہیں۔ اگر دو فیملیوں میں رشتہ ہو جاتا ہے، سمدھی بن جاتے ہیں، کل کچھ بھی نہیں تھے سمدھی بن گئے صرف منگنی ہونے سے، اس لیے کہ ہماری بیٹی وہاں جانے والی ہے، اس لیے کہ ان کا بیٹا ہمارا داماد بننے والا ہے۔ بھائی آپ کا بچہ یہاں رہ رہا ہے، کون سا رشتہ ہے یہ؟ اس رشتے کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیسے نبھا رہے ہیں اس رشتے کو؟ اس رشتے کو لے کر آپ کتنے سنجیدہ ہیں؟ ادارے کے لیے آپ کی خیر خواہیاں کیا ہیں؟ ادارے کو لے کر آپ کب دعا کیے ہیں اپنی زندگی کے اندر؟ ادارہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ آپ کے بچے کو بنا رہا ہے، کیا اس کا یہ حق نہیں ہے کہ اس کے حق میں دعائیں کی جائیں؟ یہ اساتذہ جو پڑھا رہے ہیں، یہ اساتذہ آپ کے بچوں کے مربی ہیں۔ جو کام آپ کو کرنا چاہیے، جو نماز آپ کو سکھانی چاہیے تھی، یہ استاد سکھا رہے ہیں۔ جو توحید آپ کو سکھانی چاہیے تھی، آپ کے بچے کے یہ استاد سکھا رہے ہیں۔ جو قرآن باپ ہونے کی حیثیت سے آپ کو پڑھانا چاہیے تھا، آپ کے استاد پڑھا رہے ہیں۔ جو ABCD آپ کو پڑھانا تھا، وہ آپ کی معلمہ پڑھا رہی ہے۔ کیا رشتہ ہے آپ کا ان سے؟ آپ کو ان کے حق میں دعائیں کرنا چاہیے۔ یہ سب محسن ہیں ہمارے، انہی سے ہم سب ہیں۔ یہ ادارہ آج جو یہاں کھڑا ہے، اس ادارے کو ہم نے قائم کیا ہے، لیکن قائم کرنے کے لائق اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بعد کس نے بنایا ہے ہم کو؟ ہمارے اساتذہ نے، ان اداروں نے جن اداروں میں ہم نے تعلیم حاصل کی ہے۔ کیا ان اداروں کا یہ احسان نہیں ہے کہ اس نے جب ہمیں بنایا ہے تو ہم ان کے حق میں دعا کریں؟ تو میرے محترم بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک میٹنگ معمولی میٹنگ نہیں ہے۔ یہاں پر آپ کے بچے اپنے آپ کو بنا رہے ہیں، اس سے جڑنا ہے، اس کے حق میں دعائیں کرنا ہے، اس کے حق میں ہمدردیاں ہونا چاہیے، اسے پھلتے پھولتے دیکھنے کی تمنائیں اور خواہشیں ہونا چاہیے۔ یہاں کے اساتذہ سے ہمدردیاں ہونا چاہیے، یہاں کی سرزمین سے ہمدردی ہونا چاہیے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی ذمہ داری سمجھنا چاہیے۔ بحیثیت استاد اساتذہ کو ان کی ذمہ داریاں سمجھنا چاہیے، اور بار بار بتائی جاتی ہے، اور الحمدللہ وہ اس پر عمل پیرا ہے۔ بحیثیت طلبہ کو ان کی ذمہ داریاں بتائی جاتی ہیں، کبھی پیار سے، کبھی ڈانٹ سے، یہاں تک کہ کبھی ضرورت پڑنے پر سختی کے ساتھ۔ الحمدللہ بہت سارے طلبہ اس کی وجہ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب باقی رہ گئی ہے ذمہ داروں کی، سرپرستوں کی ذمہ داری۔ ہم میں سے ہر شخص کو، میں بھی اپنے بچوں کا یہاں پر سرپرست ہوں، میرے بچے بھی یہاں پڑھ رہے ہیں، آپ کے بچے بھی یہاں پڑھ رہے ہیں، اس اعتبار سے میں آپ لوگوں کے زمرے میں بھی ہوں۔
जिम्मेदार होने की हैसियत से इदारे का जिम्मेदार हूँ, दूसरी तरफ मेरे बच्चों का सरपरस्त होने की हैसियत से मैं आप लोगों की जगह पर बैठकर भी अपने आप को सोच रहा हूँ। हम में से हर एक की जिम्मेदारी को समझने की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी जिम्मेदारियां समझने की तौफीक दे। अल्लाह हम सब के बच्चों को नेक बनाए, जन्नती बनाए। अल्लाह हम सब के बच्चों को जन्नत का रास्ता सीखने वाला, उसे समझने वाला, उस पर अमल करने वाला बनाए। जो कुछ भी वो सीख रहे हैं, जो कुछ भी वो पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी इस तालीम से दुनिया के अंदर भी उन्हें कामयाबी अता फरमाए और आखिरत में भी अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। दीन की, दुनिया की जो कुछ भी तालीम सीख रहे हैं, अल्लाह तबारक व ताला इन तमाम तलबा व तालिबात की ये तालीम उनके माँ बाप के लिए, उनकी जिंदगी में भी, उनके इंतकाल के बाद भी सदक़ा जारिया बनाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।